And then in 2009, I decided to come back to India. So I actually had to take the money out at quite a cut. And उस इंसिडेंट से मैंने काफी कुछ सीखा. पर्पस है आपको एंटरप्रेन्योरशिप में ढूंढना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत अप एंड डाउन जर्नी है. There are many people who are getting into direct stocks, intraday trading, and even F&O trading as a side business. SEBI data and all the data suggests that majority is losing. Do you think that it actually makes sense? I don't believe in this age thing. लोगों को लगता है कि हम 50 साल की उम्र में रिटायर कर रहे हैं, हमारे पास ये जो पीएफ आ रहा है इसके साथ हमें बहुत कंजर्वेटिव होना है. 2 दिन में वो पैसे आपके पास आने ही हैं और राधिका गुप्ता उसका कुछ नहीं कर सकता, बल्कि कोई इंडिया में उसका कुछ नहीं कर सकता. आई डोंट थिंक देयर इज अ बेटर टाइम दैट आई हैव सीन फॉर द इंडियन इकोनॉमी. आई थिंक अगले 20 साल के हिंदुस्तान में वो ग्रोथ आएगी. Welcome everyone. Welcome to the very first episode of FinVision Financial गुफ्तगू. I am Colonel संदीप महलवार. और आज की जो हमारी गेस्ट हैं उनको किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है. She is the top influential personality, the one who has been a CEO at the age of 32, a proud daughter of a diplomat, a mother of 2-year-old, a writer, storyteller, and the list goes on. And above all, she is that nari जो सब पे है भारी. Our favorite shark, Radhika Gupta, MD and CEO of Edelweiss Mutual Fund. So, Radhika, most welcome. शुक्रिया. थैंक यू संदीप जी. How are you? How have you been doing? और कैसा लग रहा है FinVision में आके? लवली. इट इज लवली टू सी आप लोग काम क्या कर रहे हैं, खासकर हमारी आर्म्ड फोर्सेस कम्युनिटी के लिए तो मेरे भी दिल के बहुत करीब है. आई गेस हर हिंदुस्तानी के दिल के करीब है. उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग की तरफ आप जो काम कर रहे हैं वो देख के बहुत अच्छा लगता है. राधिका, ये गुफ्तगू में जारी करना चाहूंगा as a continuation of the last time we met, and we met in Gurgaon, Yes. where you wanted to know about my Koji life and how I transitioned from a successful army career to an entrepreneur. So today is our turn to learn from you, and we would like to learn from your life journey and experiences. For the people in fraternity who may not be aware about you, would you like to share something about your background, your early life till your career in corporate? Actually, there is quite a bit of similarity between my early childhood and the experiences of many Fauji's. My father was a diplomat. Okay. He was an IFS officer. तो उनकी भी transferable job थी, which means he was posted and changed postings every 3 years. So I know that life very well. The difference is आपके फौजी bases होते थे, हम लोगों की countries होती थी, and continents होते थे, because सरकार typically when it posts you to a place like Europe, which is a very nice place. Most European countries are quite nice. उसके बाद they'll give you a very difficult posting in a place like Nigeria or Zambia. तो बदलाव हमारी ज़िंदगी में भी काफ़ी आया. So till 18, this was about my life, and every 3 years we would move. उसके बाद I decided to go abroad to study. 4-5 साल वॉल स्ट्रीट पे काम किया. And then I came back to India to be an entrepreneur. And मेरे लिए वो काफ़ी बड़ा बदलाव था क्योंकि मैं हिंदुस्तान में एक्चुअली रही नहीं हूँ. As a child, I have largely lived overseas because of my father. तो 5 साल वो entrepreneurial venture चलाया, उसको Edelweiss Financial Services को बेचा in 2014, and then 2017 में within Edelweiss एक और entrepreneurial venture शुरू करने का मौका मिला, which is Edelweiss Mutual Fund. तब बहुत छोटा था और I think to take it from 6,000 crores, today we manage about 1.4 lakh crores of money. So 2 entrepreneurial ventures. Good. So I have lots of similarities between, I can draw lots of similarities between your life and the Fauji life we live. That is, आपका भी 2-3 साल में posting हो जाता था. You also had a life which was away from your family and maternal home. Then you also had to change school every 2 to 3 years and make new friends, which is very this thing. And we will have lots of learning from you and your career in corporate, then entrepreneurship, and now a CEO of one of the biggest corporate. So, can you share some examples on your investment journey? How did you invest your initial in the initial years? So again, I think another similarity, जैसे आप फौज में जल्दी कमाना शुरू करते हैं, मैंने भी जल्दी कमाना शुरू किया 21-22 साल में. And I had some school college loans which I paid off. और बहुत middle class family से आते हैं. I mean सरकारी background income तो सबको पता है उसकी reality. And like many of you, मैंने finance college में पढ़ा था,
लेकिन आई डेंट ग्रो अप इन अ हाउस होल्ड जहाँ पैसे की बहुत बात होती थी, शेयर मार्केट की बात, ये होता ही नहीं था घरों में। कहाँ होता सरकारी था? सरकारी घरों में होती ही नहीं थी ये बातें, उस टाइम तो नहीं होती थी। तो मैंने पहले 21-22 साल पहले तो 2 साल कुछ नहीं किया अपनी सेविंग्स का, डिस्पाइट बीइंग अ फाइनेंस प्रोफेशनल, बैंक में पड़ी नहीं। फिर 2006-07 में कुछ बात हुई, इक्विटी मार्केट भी अच्छा चल रहा था, तो यूएस के इक्विटी मार्केट पे सारे बोनस, हमें बोनसेस के थ्रू पैसे मिलते थे। ओके अनफॉर्चुनेटली मैंने एसेट एलोकेशन कोई की नहीं, सारा पैसा इक्विटी में लगा दिया। Okay. एंड देन इन 2009 आई डिसाइड टू कम बैक टू इंडिया, ये एंटरप्रेन्योरियल वेंचर शुरू करने के लिए। सो आई एक्चुअली हैड टू टेक द मनी आउट एट क्वाइट अ कट। ओके एंड उस इंसिडेंट से मैंने काफ़ी कुछ सीखा कि एक तो प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है, सही एसेट एलोकेशन करना ज़रूरी है, ओके और ये जो रूल्स होते हैं ना कि 22 साल की उम्र में सिर्फ इक्विटी करनी चाहिए, 80 साल की उम्र में सिर्फ डेट करना चाहिए, ऐसे कोई रूल नहीं होता है एसेट एलोकेशन के लिए। जो आपकी सर्कमस्टांसेस के लिए सही है वो ज़रूरी है। लाइक टुडे मी एंड माय हस्बैंड, हम दोनों फाइनेंशियल सर्विसेज में काम करते हैं, बहुत हाई रिस्क करियर है हमारा, अलग तरीके से। आई नो it doesn't carry the risks जो एक फौजी करियर के, लाइफ रिस्क it doesn't have the life risk but it has market risk। yes क्योंकि जब मार्केट अच्छा होता है तो हमारे लिए सब बहुत अच्छा है। yes Like this time, मार्केट बुरा होता है तो सब होता है, और दोनों लोग एक ही घर में एक काम कर रहे हैं। इट्स नॉट कि दूसरा इंसान डॉक्टर है। तो अब मैं और मेरे हस्बैंड वी आर वेरी कंजर्वेटिव। अगर हमारी पर्सनल इन्वेस्टमेंट्स देखें तो वो थोड़ी सी ज़्यादा कंजर्वेटिव है। एंड देन वी वर एंटरप्रेन्योर्स। तो जब आप एंटरप्रेन्योर होते हो तो आपकी इनकम ही नहीं होती, 2 साल तो कोई सैलरी इनकम नहीं थी। आफ्टर वी सोल्ड द कंपनी, ऑफ कोर्स वी स्टार्टेड मेकिंग सम मनी, जॉइंड एडलवाइस। फिर लाइफ गोल्स आदमी के शुरू होते 20 साल की उम्र में, तो यू कैन बी इजी, बट वंस यू आर मैरिड यू थिंक ऑफ हैविंग अ फैमिली, घर लेना ज़रूरी है। मैं बॉम्बे में रहती हूँ, तो बॉम्बे तो बहुत महंगा शहर है। तो घर का हमने गोल पूरा किया है। नाउ वी हैव अ चाइल्ड, सो वी आर प्लानिंग टुवर्ड्स दैट। सो लाइक एवरीवन एल्स ओके गोइंग थ्रू लाइफ। वेरी नाइस वेरी नाइस। तो आपने बोला कि आपने यंग एज में अपना कैरियर, टॉप नॉच कैरियर छोड़ के अपना अपना एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट किया। सो लेट मी टेक अंडरस्टैंड इट फ्रॉम द फौजी पर्सपेक्टिव, बीइंग ए फौजी। Let me give you a brief about the Fauji officers. We all get commission at the age of 24 and we start earning. And many of us, that is short service commission officer, they retire in the age of 30 to 35. And the another set, which is a bulk, which retire at the age of 40 to 45 for premature retirement. That is, I am also part of the PMR. And then everybody almost retire at the age of 54. Like everybody else. Yes. That is more normal. So you see the majority of us in force retire actually at the age which is very young, and we are even for today's this thing, it is at the mid of the life journey, and we actually are the best, and we all look forward for a career perforce in outside earn income thereafter. So actually we all Fauji's are actually best skilled and equipped and possess that attitude and discipline for a success in entrepreneurship journey. So let me learn something from your entrepreneurship journey, because your journey has been similar. What are the few mantras जो आप देना चाहेंगे for a successful entrepreneur? I think firstly, जैसे आपने कहा, I think ये फौज बैकग्राउंड आपको सही मायने में इक्विप करता है एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। ये तो मेरा भी मानना है, बिकॉज entrepreneurship is about dealing with uncertainty, और Correct. फौज से ज़्यादा uncertainty और फौज से ज़्यादा रिस्क टेकिंग कैपेसिटी जी जी किसी की नहीं होती। बस आपको एक डिफरेंट फील्ड में अप्लाई करनी होती है। नाउ एंड आई हैव सीन सक्सेसफुल आर्म्ड फोर्सेस फोक्स जो Yeah. एंटरप्रेन्योर्स बने हैं, बहुत बने हैं। आई थिंक एंटरप्रेन्योरशिप में कोर ये है कि आपको कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, किसी कस्टमर की किसी फील्ड में कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, तो आई ऑलवेज से आप अपनी एंटरप्रेन्योरियल जर्नी शुरू कर रहे हैं तो फाइंड द प्रॉब्लम यू आर पैशनेट अबाउट। इट कुड बी फाइनेंशियल प्लानिंग, ये भी एक बहुत अच्छी प्रॉब्लम है। जी इट कुड बी मेकिंग हेल्थी फूड, इट कुड बी मेकिंग पीपल फिटर, वट एवर प्रॉब्लम इट इज जिसमें आपको इंटरेस्ट है, आपको रुचि है, okay. उसको पकड़िए। क्योंकि अगर आपको उसमें इंटरेस्ट और रुचि नहीं होगी तो वो सस्टेन नहीं होगी। तो एंटरप्रेन्योरशिप इज अ, लेकिन फॉर यू हैव अ सेंस ऑफ पर्पस, तभी तो आप जान दे रहे हैं, जी जी वो रेडी होते हो। तो Purpose. ये जो
पर्पस है आपको एंटरप्रेन्योरशिप में ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत अप एंड डाउन जर्नी है और इसमें अर्ली डेज में कमाई बहुत कम होती है। तो आजकल एंटरप्रेन्योरशिप को बिकॉज ऑफ थिंग्स लाइक शार्क टैंक एक्सेट्रा काफी ग्लोरीफाई कर दिया गया है, but the reality is it is not very glamorous. I mean, I remember not taking income for 2-3 years. This is reality. So that is one suggestion. The second suggestion is अगर आप entrepreneurship करना चाहते हैं in the context of a फौजी career, उसमें एक certain amount of capital होता है, तो it is very important while you are earning, while you are in commission, कि आप अपना एक savings और investment का pattern बनाइए जिसके लिए आपके पास एक safety net हो और अगर जरूरत पड़े तो एक इनिशियल कैपिटल भी हो काम शुरू करने के लिए, वो भी बहुत जरूरी है। बिकॉज अगर आप फौज के बाद एक कॉर्पोरेट ज्वाइन करते हैं तो आपको एक इनकम सेफ्टी तो है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। So, in the 4G perspective, the armed officers perspective that I've shared, how do you think that ideal officer getting commissioned at 24 years, how should he invest money? Some tips for it. See, I think the other thing that is unique to Fauji's is कि एक transferable job है, and many times you are in remote locations. Now, आपके लिए मुझे लगता है सरलता अपने निवेश में, simplicity in your investment is very important because there are many times you can't track the market up and down. There are many times if you invest in something that is very complicated, आप उसके पीछे नहीं भाग सकते. Unfortunately, life is also at risk. So you can't have something that is illiquid क्योंकि आपको फैमिली के लिए प्रोवाइड करना है. तो मेरे हिसाब से फौजी के लिए जो निवेश है वो बहुत सिंपल होना चाहिए. अब आप कहोगे मेरा बायस है क्योंकि मैं म्यूचुअल फंड से आती हूँ, बट आई थिंक अ म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट इज एक्चुअली मेड फॉर द कंडीशंस ऑफ अ फौजी. बिकॉज आप जब कमीशन में 24 साल की उम्र में शुरू कर सकते हो, आप जितनी भी आपकी आमदनी है उससे SIP शुरू कर सकते हैं, चाहे किसी भी फंड में. अब आपको, और अगर आप 24 साल की उम्र में करोगे तो आप इक्विटी में कर सकते हो क्योंकि आपके पास वक्त है, एटलीस्ट 32 तक तो आपके पास वक्त है, द मिनिमम. सो यू कैन स्टार्ट डूइंग SIPs इनटू इक्विटी फंड्स एंड यू शुड चूज वेरी बेसिक सिंपल डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स. इसमें कुछ कॉम्प्लिकेटेड करने की जरूरत नहीं है. द गुड थिंग अबाउट दैट मनी इज ऑलवेज एक्सेसिबल in the event of a crisis. हाँ, it's there at the click of a button. It is very simple. आपको मार्केट को ट्रैक करने की जरूरत नहीं है. तो आपके लिए तो एक वक्त, आई थिंक दूसरा फौज के कॉन्टेक्स्ट में एडवाइजर का रोल, मैं तो कहती हूँ हर चीज में जरूरी है. नो, आई थिंक इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फौज इट इज एन एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट रोल क्योंकि आप खुद अवेलेबल नहीं हो बहुत टाइम्स, राइट? यू आर नॉट, आप जगहें चेंज करते रहते हो और आपका दिमाग उसमें फोकस्ड रहता है कि मैं नई पोस्टिंग में, आई मीन आई हैव सीन माय फादर गो थ्रू दिस, राइट? नई पोस्टिंग में सेटल करूं, बच्चों का स्कूल नई जगह सेटल करूं, फैमिली को सेटल करूं. सो यू एक्चुअली नीड हेल्प अलोंग दिस जर्नी. उसी में अभी हम लेटेस्ट ट्रेंड देख रहे हैं, एंड सिंस एवरीबॉडी इज एजुकेटेड, एवरीबॉडी हैज गॉट एक्सेस, देयर आर मेनी पीपल हु आर गेटिंग इनटू डायरेक्ट स्टॉक्स and intraday trading and even F&O trading as a side business. SEBI data and all the data suggests that majority is losing. Do you think that it actually makes sense? I mean, I am going to be blunt and say no. I talk about two things. एक तो F&O और ये जो intraday का वो चला है. जब SEBI ने कहा है कि 95% people lose money, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ब्रोकरेज कंपनी जीरो था, उनके पास तो सबका डेटा होगा. जी, उन्होंने भी कहा है कि सब FD से कम पैसे बनाते हैं. नितिन कामत का वो आर्टिकल आया था लास्ट में. हाँ, तो ये तो बहुत टाइम से आ रही. तो फिर आप उन 5% में क्यों होना चाहते हैं? अब जहां तक डायरेक्ट इक्विटी की बात है, आई एम नॉट सेइंग डायरेक्ट इक्विटी इज बैड, बट अगेन मेरा मानना है डायरेक्ट इक्विटी से हिंदुस्तान में 800 कंपनी है. आपको क्या 800 कंपनी या 100 कंपनी ट्रैक करने का टाइम है? कंपनी के हालात बदलते रहते हैं, कंपनी की रियलिटी बदलती रहती है. आपका तो करियर इतना बिजी है, इतना अनसर्टन है, और आपका ट्रांसफरेबल जॉब है. आपके पास ये ट्रैक, आई मीन आई रिमेंबर टिल माय फादर वाज इन सर्विस एंड डूइंग अ ट्रांसफरेबल जॉब, he was hardly active in stocks. He could not afford to be, because जिंदगी की 10 और प्रायोरिटी होती थी. So for that vehicle, for that set of people, equity mutual fund does the job. So I give this analogy कि बिरयानी कितने लोग खाते हैं? हिंदुस्तान में हर आदमी बिरयानी खाता है. बिरयानी इज द मोस्ट पॉपुलर ऑर्डर्ड आइटम ऑन Zomato. लेकिन घर में कितने लोग बिरयानी बनाते हैं? क्योंकि बिरयानी बनाना बड़ा मुश्किल काम है. अगर आप ढंग से बिरयानी बनाओ
उसमें बहुत इंग्रेडिएंट, मुझे खाना बनाने का शौक है, उसमें बहुत इंग्रेडिएंट रखते हैं. मोस्ट पीपल ऑर्डर. तो इफ यू वांट टू बी 5% ऑफ पीपल जो डायरेक्ट इक्विटी करना चाहते हैं करिए, बट रिमेंबर 95% ऑफ पीपल ऑर्डर भी है. I also tell people the same. Like when Nifty started with 50 companies in the 25, 26 years of journey. Out of those 50, the top-notch so-called blue chips, only 13 survived. Yeah. 37 changed. Absolutely. So that is the data. And like I told you about how the Fauji officers retire, and I'm talking about the majority retiring between 40 to 55. Yeah. They get a amount of 1 to 1.5 CR, and now either they are working in corporate for this living, or they are picking up their own second source of income. So, though you mentioned about the asset allocation, do you think that ideal asset allocation theory of 100 minus age, with their pension coming of 1 lakh rupees per month, that is assured, should that be applicable to them, or they should go into the right asset allocation strategies, whichever vehicle or whichever investment instrument is now working, they should align towards that? See, I don't believe in this age theory. You also don't believe in that ideal asset allocation? नो, आई बिलीव कि 20 साल का लड़का, 20-25 साल का लड़के, उसको तो इक्विटी में होना चाहिए आपके 100 में. जी. अगर उसकी घर की लायबिलिटी है, उसके सर पे माँ की जिम्मेदारी है, तो वो शायद बहुत कंजर्वेटिव है. जी जी. आई हैव माय फादर इज इन हिज मिड 70s, उनकी पेंशन आती है, जी जी. उनकी वाइफ काम कर रही है, उनके बच्चे भगवान की कृपा से अच्छे सेटल्ड है, उनके एसेट एलोकेशन तो 90-100% इक्विटी है. तो पीपल हैव टू डू द राइट एसेट एलोकेशन फॉर द टाइम एंड देयर सर्कमस्टांसेस. मुझे ये एज के, दूसरी बात, लोगों को लगता है कि हम 50 साल की उम्र में रिटायर कर रहे हैं, हमारे पास ये जो पीएफ आ रहा है इसके साथ हमें बहुत कंजर्वेटिव होना है. यू हैव टू रियलाइज कि आज की तारीख में इंसान, इफ हेल्थ इज गुड, 80-90 साल तक जीता है. सो इवन इफ यू रिटायर 45-50, आपके पास 40 साल है. तो अगर आप उस पैसे को सीधा एफडी में डाल देंगे, आप इन्फ्लेशन पे नहीं कमा पाएंगे. तो उस, आई एग्री, आपकी पेंशन है, बट आपके लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस भी बढ़ते हैं आजकल हर इंसान को. मेरे पेरेंट्स हमेशा कहते हैं लाइफस्टाइल ना आगे ही जाती है, पीछे जाना बड़ा पेनफुल है. तो यू हैव टू बी वेरी थॉटफुल. जो ये पीएफ कॉर्पस आता है, एंड उसमें भी आपको थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा. अब आप 100% इक्विटी में कंफर्टेबल नहीं है तो आप बैलेंस फंड कर लीजिए, लेकिन आप उसको एफडी में बिठा के रखेंगे तो आपको टैक्स के बाद 4% मिलेगा, और आपको 40 साल वो कॉर्पस चलाना है. And the second perspective one can draw is from like ये हमारी पे पेंशन रूल और जितनी कैलकुलेशंस हैं, they are all based historically 50 साल से भी वही चल रही है. जब हाँ. हमारा लाइफ used to be around 50 to 55 years. Correct. आज के दिन वो बढ़ के 80-90 हो गया है. So you're spending half your, Fauji is spending half his life retired. Yes, sir. He has to have risk taking ability. That rule has to be individual, and one has to define his individual goals and And make a appetite. decision. Make a decision. And remember, 40 साल है. Yes. Now, when the Fauji's come outside, they face similar challenges that you face as a lady CEO in the male-dominated industry. So, what were the challenges that you faced, and how did you overcome those challenges once you got into corporate as a top CEO? Challenges तो हर इंसान के होते हैं. I think अगर, and it is not about male female, जैसे आपने कहा कि फौज के भी challenges होते हैं, आप अलग होते हो ना. I always say there's one Tamilian among 30 Gujaratis, उसको भी थोड़ा अजीब लगेगा. And so वो challenge होता है, और कभी कभी वो चैलेंज इसलिए नहीं होता है क्योंकि बाकी सारे लोग बुरे होते हैं, क्योंकि आपको खुद बोलने से डर लगता है. मुझे लगता है वक्त बहुत सारे चैलेंजेस सॉर्ट आउट करता है. मेरे केस में तो आई थिंक वक्त ने मुझे बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंस दिया है. एंड ये फौजियों को तो मेरा कहना भी गलत है, बिकॉज रेजिलियंस उनसे ज़्यादा किसी में होती नहीं है, बट जस्ट सम अमाउंट ऑफ रेजिलियंस, some ability to learn, assimilate, and to assume not that people around you are not bad, they are just different, and time will heal all problems. मेरे साथ तो I think when I joined mutual fund industry, I was very uncomfortable because very similar to the Fauji experience, मैं MF outside of my age and gender, मैं MF industry की नहीं थी, मैं बाहर पढ़ी हुई लड़की थी, तो मैंने काम ही नहीं किया था. बट एज आई gotten to know people, as मुझे अपने काम में कॉन्फिडेंस आया है, यहाँ भी अपना ही लगने लगा है,
तो यहाँ भी अपने दोस्त बन गए, यहाँ भी. एंड यू नो फंडामेंटली वी kids who grow up in transferable jobs, we Fauji's, everyone, we are very adaptable. I think the greatest quality, and my bosses have said this all through my corporate career, कभी because रवे आता है, is adaptability. आजकल तो Very it's good. funny लोग adaptability quotient की बात करते हैं कि this is the future. You know, in a Fauji background, in a Sarkari background, you are born with that Born. gift. You have to make. We are very adaptable. So that I think is the greatest skill that we have. You have been the MP Vice President and all. I would like to have some perspective of yours on this ongoing noise of front running, which has happened now. And Yeah. it has, we keep on hearing it every periodical, yearly basis. So, your perspective on this, and is the investors' money actually safe in mutual funds, or is there a reason to worry? I'll tell you, मैं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री 40-50 साल पुरानी है. And it is one of the, it is actually, let me not say one of the, it is the most transparent, highly regulated investment vehicle there is in the market today. आज अगर आपको बैंक अकाउंट बंद करवाना है तो शायद आपको 1 महीना लगेगा, 15 दिन लगेगा. म्यूचुअल फंड में अगर आप 100 रुपये डालोगे और आप एडलवाइज म्यूचुअल फंड में रिडेम्पशन करना चाहोगे, 2 दिन में वो पैसे आपके पास आने ही हैं और राधिका गुप्ता उसका कुछ नहीं कर सकता, बल्कि कोई इंडिया में उसका कुछ नहीं कर सकता. ये जो फैसिलिटी है कि 2 दिन में आपको अपने पैसे आपके अकाउंट में मिले, ये कहीं नहीं होता. कहीं नहीं. एंड आई थिंक दैट इज द ट्रांसपेरेंसी ऑफ दिस व्हीकल. ये आज 50 लाख की करोड़ की इंडस्ट्री ऐसी ही नहीं होनी. अब आपने कुछ इंसिडेंट्स का जिक्र किया. किसी भी इंडस्ट्री में प्लेयर्स होते हैं, गलतियां होती हैं, मिसडीड्स होते हैं, लेकिन उस एक इंस्टेंस या 2 इंस्टेंस के कारण पूरी इंडस्ट्री को पेंट गलत कर देना वो गलत है. एंड आई टेल यू इन ऑल दीज, एंड हमें खुशी होनी चाहिए कि अगर कुछ गलत हो रहा है कहीं तो रेगुलेटर उसे देख रहा है. एंड अगर हो भी रहा है, किसी भी फंड में कुछ हो रहा है, आपको वो रिडेम्पशन देने का ऑप्शन हमेशा आपके हाथ में है. अगर आपके 100 रुपये म्यूचुअल फंड में हैं, आप आज बटन दबा के आज आपको फ़ोन करके कह सकते हो पैसे निकाल लो और वो आ जाएंगे. और नहीं आएंगे, 1% कट के आएंगे, 2% कट के आएंगे, क्योंकि तब तक मार्केट गिरेगा, लेकिन आपके पैसे डूबेंगे. बिल्कुल नहीं. एंड द लास्ट थिंग आई विल से इज के इट इज योर राइट टू आस्क मोर क्वेश्चंस. आप एडवाइजर से क्वेश्चन पूछिए, आप म्यूचुअल फंड वालों से क्वेश्चन पूछिए, लेकिन ये जो नेगेटिव आते हैं कि इंडस्ट्रीज क्या, ये फॉल्स है. Now we are at the lifetime highs. I call it till date high. Do you think there is a scope for making returns in market even from here on? मैं 6 महीने का मार्केट का फोरकास्ट कभी नहीं करती, बिकॉज ये करना बहुत. वही नहीं. But I think as Indians, and as someone whose father served the government, represented India for many years, I don't think there's a better time that I have seen for the Indian economy. I think अगले 20 साल के हिंदुस्तान में वो ग्रोथ आएगी जो चाइना में 15 साल पहले आई थी, जो यूएस में अर्ली 90s में आई थी. इट्स ऑलमोस्ट माई फादर सेज अ गिल्टी एज. तो उस इंडिया आज 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है. पिछले 50 साल में हर 6 साल इंडियन इकोनॉमी डबल की. आज वो 4 ट्रिलियन के साइज पर डबल कर रहे हैं. दिस इज गोइंग टू बी इनक्रेडिबल. Huge. एंड फाइनली यू नो पीपल जो मार्केट को, लोग मेरे से आके कहते हैं कि मार्केट सट्टा है, मार्केट ये, मैं कहती हूँ उनसे आपको हिंदुस्तानी इकोनॉमी पर विश्वास है? कहते हैं हाँ. मैंने कहा हिंदुस्तानी इकोनॉमी क्या है? हिंदुस्तानी इकोनॉमी तो हिंदुस्तान की कंपनी है. इकोनॉमी अच्छा करेगी तो इसलिए करेगी ना क्योंकि कुछ कंपनियां काम करेंगी, तो मार्केट जरूर अच्छा करेगा. तो आई थिंक इन द नेक्स्ट 10 years मार्केट इन्वेस्टर्स हैव नथिंग टू डू. And like, just for the sake of it, I find that many people are getting attracted कि Indian को छोड़ के US में भी invest करें. Do you think India has got more perspective than US or outside, or we can diversify some amount into overseas, but where the scope lies? What I tell people is कि आप डाइवर्सिफिकेशन कर लीजिए, जी, जी. 10-15% कर लीजिए. प्राइमरी बायस तो आपका होम करेंसी में होगा क्योंकि आपके खर्चे भी हिंदुस्तान में है, आपकी जिंदगी भी हिंदुस्तान में है, एंड फॉर्चुनेटली आपकी ग्रोथ भी हिंदुस्तान में है. आज ऑल्सो टैक्सेशन ऑफ फॉरेन फंड्स इज फुल टैक्स. इंडियन फंड्स आर इंडिया टैक्स. दैट्स इट. 10%. आई मीन वी रन इंटरनेशनल फंड्स.
5-10-15% यूएस इकोनॉमी, फॉरेन इकोनॉमीज में डाइवर्सिफाई करना अच्छा है. अगर आपने इंडिया कर लिया है, फर्स्ट इन्वेस्टमेंट शुड नॉट बी फॉरेन. आई ऑलवेज से दिस, फर्स्ट इन्वेस्टमेंट शुड बी इंडिया. Now, we would like to learn from your Shark Tank experience. How USA Shark, what is your perspective on the Indian startups and entrepreneurship? See, I think मैं मुझे कहती हूँ, if you want to feel optimistic about India, जी जी आपको शार्क टैंक के सेट पे आना चाहिए. जी Because you see these kids and they're like 22, 23, 24 from tier 2, 3, 4 India. और उनमें एक रिस्क टेकिंग का जज्बा है, उनमें आइडियाज़ हैं, उनमें कम रिसोर्सेज के साथ एग्जीक्यूशन करने की क्षमता है. तो ये बहुत बड़ी बातें हैं फ्रॉम. एंड आई थिंक ये हिंदुस्तान की तरक्की का एक बहुत अच्छा मेजर है कि 50 साल पहले यूथ एस्पायर करता था कि मैं सिर्फ सरकार, परमानेंट जॉब. मेरे टाइम में शायद एस्पायर करता था कि मैं किसी ग्लोबल एमएनसी में काम करूँ. आपको एस्पायर करता है कि यार मैं कोई खुद का स्टार्टअप खोल लूँ या खोल दूँ, तो बहुत बड़ी बात है. एंड ऑफ कोर्स देयर आर गुड स्टार्टअप्स एंड देयर आर बैड स्टार्टअप्स, बट आई थिंक मैंने इन कंपनीज से बहुत सीखा है. एंड some of them are doing some very good work, solving some genuine problems that Indians have. तो बहुत मजा आया. So, can you share some insights on to how USA Shark going about judging new age startup? So we have very startup pitch and one pitch that attracted you the most. I tell you, we get very little time. We only get 1 hour with these companies. जी जी तो आमतौर से हम क्या देखते हैं, हम सबसे पहले तो एंटरप्रेन्योर देखते हैं. आई थिंक द एनर्जी, द कॉन्फिडेंस, द ह्यूमिलिटी, ऑल दीज थिंग्स फॉर मी दे आर पैरामाउंट. दूसरा भाई फंडामेंटली बिजनेस क्या है, बिकॉज गुड एंटरप्रेन्योर इज वन थिंग, बट आप काम क्या कर रहे हो. आप कोई जेन्युइन, आधी स्टार्टअप्स मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम ही नहीं सॉल्व कर रहे. यू नो, सो आई रियली लाइक टू लुक फॉर पीपल हु आर सॉल्विंग अ जेन्युइन customer problem. Unit economics देखते हैं, because finally it is a business. It has to make money, not today, but at some point. तो ये सारी चीज़ें देखते हैं, and I think in 1 hour this is all you can gauge. पिक्चर्स तो मुझे बहुत सारी अच्छी लगी हैं. I think my favorite one, जिसमें मैंने फाइनली निवेश भी किया था, was a company called Two Hands, एक कैलकुलेटर कंपनी है. Okay. एंड ये हिंदुस्तान के जो लाखों किराने वाले हैं, दुकानदार हैं, उनके यहाँ अगर आप देखें, फ़ोन तो हमेशा चार्जिंग पे लगा रहता है, और वो किराने वाले के पास या दुकानदार के पास लोग यूपीआई में भी पैसे देते हैं, कैश में भी देते हैं, उधार पे भी देते हैं. वो अकाउंटिंग कैसे करें. अब वो फैंसी कंप्यूटर और वो तो अफोर्ड नहीं कर सकता, फ़ोन चार्जिंग पे लगा रहता है. तो एक 23 साल के लड़के ने अपने यूपी से ही शुरू किया, प्रवीण मिश्रा, कैलकुलेटर. उस कैलकुलेटर हर दुकानदार आप देखेंगे यूज़ करता है. कैलकुलेटर में ही उसने ये पॉइंट ऑफ सेल का काम इंटीग्रेट कर दिया. आई ऑलवेज से एक हिंदुस्तानी सच्चाई के लिए एक हिंदुस्तानी सुझाव. सो आई लव थिंग्स लाइक दैट. 6 साल से वो लगा है इस काम, 6 साल से. Innovative. Innovative, something new. I don't know if he'll, I hope he does very well. He is the guy who I would like to see do extremely well. Now, we at FinVision are starting with our new branch, which is investment only for ladies specific. We are calling it FinVision Pick. So, your advice to women as investors, and why is it important for them to take control? Oh my God. Firstly, I think this conversation is for army wives, wives of armed forces. I think they are incredible women. But I urge all of them, and very strongly urge all of them, कि प्लीज़ अपने घर के फाइनेंसेस में एक रोल प्ले कीजिए. एक तो आपके यहाँ लाइफ बहुत अनसर्टन है, तो ज़रूरत बहुत है. दूसरा, आई थिंक जो गोल्स होते हैं आपके, वो फैमिली के गोल्स होते हैं, खासकर अगर जल्दी रिटायरमेंट हो रही है. एंड प्लानिंग तब अच्छी होती है जब दोनों लोगों का हिस्सा हो, क्योंकि पैसे जो कमा रहे हैं वो घर के लिए कमा रहे हैं, घर के गोल्स के लिए कमा रहे हैं. एंड आई थिंक एज आर्म्ड फोर्सेस वाइज आप में कैपेबिलिटी तो बहुत चीज़ें हैंडल करने की है. तो इट्स नॉट कि पैसा आपके बस की चीज़ है, बिल्कुल आपकी बस की तो बहुत सारी चीज़ें. तो प्लीज़ आई अर्ज यू टू गेट इन्वॉल्व, बिकॉज आई हैव सीन सो मेनी इंस्टेंसेस in my own life
where the lady doesn't get involved and something happens and the lady is left in such a difficult situation. And people, because she doesn't know, people take advantage of her. What the husband is left behind which she doesn't know how to use. कभी कभी वो अपने घरों में देखा है, बैंक के पास जाके फ्रस्ट्रेट हो जाती हैं, आंसू आ जाते हैं कि मैं तो प्लीज अपने आप को इस टूल के साथ इक्विप करें. I also advise them take it as early as possible. As early as possible. And now, since we are talking about women as investors, your perspective on gold, ladies' attraction towards gold, and now I want to know gold as an investment asset class. Yes, we do advise people to invest in gold as a diversification. Yeah. But beyond that, is that investment in gold actually makes sense? आई थिंक आपने बिल्कुल एग्जैक्टली मेरा व्यू कह दिया. इट इज़ अ डाइवर्सिफिकेशन इंस्ट्रूमेंट. 10% किसी का गोल्ड हो तो ठीक है. फाइनली ह्यूज वेल्थ क्रिएशन गोल्ड से नहीं. तो वेल्थ क्रिएशन अगर आपको चाहिए, सीरियस वेल्थ क्रिएशन, तो वो तो इक्विटी मार्केट से आएगा. गोल्ड कैन बी अ बैलेंसिंग फैक्ट. आई कीप टेलिंग वुमेन, आप अगर ज्वेलरी को इन्वेस्टमेंट देख रही हैं तो एक तो ज्वेलरी इन माय व्यू इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट. अगर आपको गोल्ड लेना है तो वो आप फंड्स के जरिए लीजिए, अपनी ज्वेलरी को थोड़ा अलग रखिए. Since you are talking about ladies and you are convinced that ladies have to take part in the finances, give us 2 steps that they should be taking tomorrow about their investments. I think 2 things. One, have a short-term investment in a contingency fund. That is important for women to create for the family. And 2, make a long-term investment. And ladies के लिए मैं बहुत सिंपल, मैं 2 ही प्रोडक्ट रिकमेंड करती हूँ. अगर कोई बेसिक सवाल पूछे, अगर आपको लंबे समय का, आप थोड़े से अग्रेसिव हो तो आप कोई फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप पकड़ लीजिए. अगर आप थोड़ा एज अ लेडी कंजर्वेटिव को शुरू करना चाहते हो, आप कोई हाइब्रिड फंड पकड़ लीजिए, जैसे कोई बैलेंस्ड फंड. बस, फिनिश्ड. And as the data also suggests, out of the 5 investors in India, 4 are gents and only 1 is a lady. Yeah. And so therefore it is important for the ladies and the women force to take interest in their personal finance, and there's a long way to achieve that desired gender equality in finances. But I'm happy with you as Radhika being in the top of the career and managing this. And many women will get motivated and encouraged to take steps into their personal finance and take control of it and get into entrepreneurship and achieve the desired financial independence. Thank you, Radhika. यहाँ पे हम अपनी गुफ्तगू को wrap up करते हैं. It has been so nice of you for coming here, taking out time and giving us some gyan on how to go about our personal finance and investment from here. Alright then, that was all for today's Guftugu. Do share your feedback in the comment box and also do tell us which topic should we cover next. We hope you enjoyed and learned something from this highly informative episode. If you did, don't forget to hit that like button and do subscribe for more awesome content like this. We actually put lots of work into research. So your subscription and support really means a lot to me and the entire team FinVision. Thank you so much. Happy investing. Jai Hind.